Inside your stomach is the complete universe. There I give pranam to your stomach and to that rope also, which bound the stomach. I give pranam to your most beloved, Srimati Radhika, to your pastimes, to your parikas. To all of these I give pranam, namaste. Therefore Satyavrat Muni is finishing his prayer, understanding without the mercy of the devotees of Krishna, I cannot achieve everything. Therefore he is giving pranam to everything. Krishna, the robe, his associates, his pastimes, everything. Therefore that robe, I give pranam to that robe. It bound the grinding mortar. Also that robe is full of transcendental effulgence. It is transcendence personified also. That Krishna who has no beginning, no middle, no end, but still that robe performed the impossible by binding him. It is formed of Vatsalya Ras. Therefore to that robe I give pranam again and again. I give pranam to Krishna's stomach, from which the navel extends, the lotus flower upon which Brahma is born and from which the creation extends. Therefore I give pranam to his stomach. I give pranam to the stomach of Krishna. 2 times Madhya Yasoda saw the universal form there. Therefore that rope not only bound Krishna, Madhya Yasoda bound the whole creation. Therefore, even though it is impossible to bind Krishna, Madhya Yasoda and that rope bound him. This cannot be understood by mundane logic. It is simply a manifestation of Krishna's opulence. Even though the rope is above the stomach, still the stomach is superior. Even though the rope is past the stomach and above the stomach, still the stomach is superior because of all these reasons. Therefore, without the mercy of the devotees of Krishna, one cannot achieve the mercy of Krishna. Therefore, if one worships Krishna, he may become perfect, or may not become perfect. But perfection is guaranteed by service and worship of the devotees of Krishna. Therefore, Radhikaya, Srimati Radhika is the topmost of gopis, and by worshipping her, all the gopis are included, because all the gopis are simply expansions of her. Therefore, by worshipping her and saying her name, Satyavrat Muni is worshipping all the gopis and all the associates also. She is the most dearest to Krishna. Therefore, her name has come from the root word Rui, which means she knows nothing else but Seva. Therefore, I give pranam to Srimati Radhika, who is your dearest. All the Brijvasis love Srimati Radhika, and Srimati Radhika loves Krishna, because all have affection for her, and because she has affection for Krishna, she is known as Radhika. She has a special prem in her that is not found anywhere else. Because she is worshipful for Krishna, and because she worships Krishna also, her name is Radha. Therefore, only because of her there is Ras Lila. But this Lila is most confidential, therefore it's given in a very hidden way. Madhurena Samapyat, when we finish, we should finish with something sweet. Of all sweet things, the pastimes of Krishna is the sweetest. Therefore, Ananta Lila. Ananta means the unlimited. All Krishna's pastimes, but especially Ananta Lila means Ras Lila. Inside Ras Lila, you should understand all the pastimes in Gokul, all the pastimes of Vrindavan are included within Ras Lila. Therefore, Krishna is Kriya Parayan. He is always very much anxious to perform pastimes. Therefore, all Krishna's pastimes are included in this prayer, Ananta Lila. Therefore, finally, the Tika, the Buddhis are praying, that Swayam Bhagavan, that Krishna, he is not an incarnation. He is directly Swayam Bhagavan, but Madhya Yasoda bound him. Therefore we give pranam to the rope which bound Yamuna.
करवा रहे हैं। Hare Krishna. The devotees who have extra luggage which they want to leave here, the room in the corner next to the staircase on the ground floor will be available for that. After our parikrama you can pick up your luggage. Not in the middle. The buses have not yet arrived. Some are almost on the front. About half is missing here. Should you fall? So prepare everything, your luggages. If you need to go to your room or everything is here, as soon as all the buses have arrived, we will start. Okay? Hare Krishna. हरे कृष्णा। बहुत से भारतीय यात्री हैं जो लोग टिकट बिल्कुल नहीं किया है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, वो लोग बैठे हुए हैं और बैठी हुई हैं। उन लोगों से अनुरोध करता हूँ, पहले हमारे यात्री सब चढ़ जाएं, चढ़ने के बाद अगर जगह हो तो हम लेंगे। आप लोग पास में जाने भी कर रही हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, लेकिन कोई फीस जमा नहीं किया, टिकट नहीं किया है। आप लोगों से सनिर्बद्ध अनुरोध है, हमारे यात्री चढ़ने के उपरांत अगर सीट हो तो हम ले सकते हैं। कुछ भारतीय यात्रियों देखছি তারা এখানে আছেন, তারা টিকিট করেননি। পূজ্যবাদ কীর্তমায় আপনাদের বলেছেন টিকিট করার জন্য, তারা করেননি। এখানে বসে আছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি আরো দুজন বসে আছেন। আমাদের যাত্রী চড়ার পর যদি জায়গা থাকে তাহলে আমরা নিতে পারি। গোবর্ধনে গিয়ে সকলে টিকিট চেক করা হবে। যারা টিকিট করেননি গোবর্ধনে গিয়ে प्लीज जमा टिकट করবেন, না হলে অসুবিধা হবে। जो लोग अभी टिकट नहीं किया है उनको अनुरोध करता हूँ, गोवर्धन में जाकर सबको टिकट चेक किया जाएगा। बिना टिकट सबको असुविधा होगी, इसलिए आप लोग जो फांकीबाजी देकर इतना दिन बिताया है और फांकीबाजी न दें। ये फांकी देने पर अपने फांक में फांकी पड़ेंगे, आपका परमार्थ नष्ट होगा। आप आके गुरुवस्तों के भार बनेंगे, ठीक नहीं है। So some devotees come every day who has not registered yet. Please register your name and pay your fees. Without registration, it's very hard for us to arrange for accommodation, food and lodging, etc., transportation to home. Kirtan, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, now the devotees are informing us that the children, they are good health again. There are many parents that brought their children and they are playing on the road. I request again on behalf of our team of managers, the parents should be very responsible. Even the Harikatha may go on or any other program, one of the parents or two or three should look after the children. If they're on the road, very dangerous. If they play here and there in the room, anywhere, it is very dangerous. Make sure the children understand very clearly that they should not make any difficulties during the period that they are here. If it is noticed, then we have to request you to take your children and be anywhere in Vrindavan, otherwise it is too irresponsible. Thank you. हरे कृष्णा। आज हमारा कांसर और एक करतल, झांझर और एक कांसर आप लेके आए। देखो तो जिस किसी को भी मालूम हो कांसर के बारे में, আমাদের এই ব্রহ্মচারীগণের মধ্যে কে হাজার আর 500 এনেছেন কোথায় জমা দেন আমাদের কাছে তো দিবেন।
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय मन्ये कुतैर्गिरिवरं जत्यञ्जलिकरोति संविदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि रसधामं Yeah, right. Sometimes, कभी-कभी कोनो समय बंगाली में मेरा ध्वनि दिखते पाए कोनो आपत्ति नहीं। भक्ति देवी स्वयं पुरुषार्थ शिरोमणि ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत गीता आदि शास्त्रों के शास्त्रीय प्रमाणित द्वारा भक्ति की स्वतंत्रता और भक्ति स्वप्रकाशिता रूपे के स्थापन पर प्रथम दृष्टि का उपसंहार कर रहे हैं। प्रथमे बोला है किसी परम स्वतंत्र महापुरुष की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। महतों के हृदय में विराजमान भक्ति उस कृपा का हेतु है। यदि मध्यमाधिकारी भक्ति का कारण है तो भक्ति की स्वतंत्रता की हानि नहीं हुई, क्योंकि भक्तों के हृदय में जो भक्ति है उसी से उसको कृपा होती है और उसी से भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए भक्ति के द्वारा ही भक्ति होती है। भागवत में ऐसा कहा गया है, स्मरंत स्मारयंतश्च मिथो अभौ धर्म हरि
भक्त्या संजात्या भक्त्या विभुत उत्पूलकम तनु नवयोगेंद्र के अन्नतम श्री प्रबुद्ध जोगेंद्र महाराज नेमी के निकट कह रहे हैं, हे राजन, एक प्रकार साधन भक्ति के आदिभूत प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं हरि को स्मरण कर और दूसरों को स्मरण कराकर जात प्रेम भक्त रोमांचित और उद्दीत हो। जात प्रेम जाके हृदय से प्रेम उत्पन्न हुए छे एक रकम भक्तगण परस्पर जेरकम सनातन गोस्वामी देखा होले अपनी केमन आछे अन्य सब विषय कथा जिज्ञासा ना करे कृष्ण कथा गोपी गणेर कथा परस्पर बोले और पुलकित होच्छे रोमांचित होच्छे अन्य को रोमांचित और पुलकित होच्छे। कर्म जो ज्ञान आदि साधन में साधन और साध्य भिन्न है। जैसे ज्ञान का साधन मुक्ति है, जो का वो भी तो परमात्मा में मिल जाना है, किंतु कर्मयोग का जाग जब इत्यादि साधन है और स्वर्ग की प्राप्ति साध्य है। ज्ञानियों का सम दम तितिक्षा ध्यान आदि साधन है और ब्रह्म सायुज्य साध्य है। योगियों का जम नियम आसन प्राणायाम साधन है, परमात्मा सायुज्य उनका साध्य है। ये सब साधक सिद्धि के निकट जितने ही अग्रसर होते हैं उनका साधन कम हो जाता है और अंत में साधन का बोझ मस्तक से हटा करके सिद्धि में रम जाते हैं, साधन अब नहीं रह जाते। इसलिए उनका साधन और सिद्धि दोनों पृथक पृथक, किंतु भक्ति में नहीं। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये भक्ति के 3 स्टेज है। किंतु है भक्ति तो तारतम्य है भक्ति का। साधन भक्ति साधन होना, किंतु है भक्ति। भाव भक्ति प्रेमा भक्ति का आभास और प्रेम भक्ति कर्तव्य की अवस्था है। पूर्व भक्ति ही क्रमशः भक्ति का हेतु हुआ करती। पूर्व जो भक्ति से क्रमशः भक्ति हेतु हुआ, इसलिए भक्त साधक प्रेम भक्ति को जितना ही अग्रसर होता है उसका साधन और बढ़ता जाता है, समाप्त नहीं होता। यदि कोई एक आदमी भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर तो श्रवण कीर्तन बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। क्योंकि साधन की अवस्था में जिसका आस्वादन होता है, भाव और प्रेमावस्था में उसका आस्वादन कारण होता है। अभी साधन इंद्रियों से होता है, क्योंकि साध भावा साधन विधा नित्य सिद्ध प्राकट्य दिशा, वो भाव तो नित्य है, कहीं से लाना नहीं है। कपड़ा है, इसको साफ कर दिया, इसलिए हमारे अंदर में है, किंतु साधन के द्वारा उसको प्रकट किया जाता है। किंतु सब साधनों को साधन नहीं कहा जाएगा। यदि भाव को प्रकट करने के लिए साधन भक्ति इंद्रियों के लिए की जाती है तब तो साधन भक्ति है, साध बाबा, जिससे कि भाव भक्ति हो। अन्यथा भाव को उद्देश्य करके यदि साधन नहीं होगा वो साधन नहीं। नरोत्तम ठाकुर তিনি বলছেন पाकिने से प्रेम भक्ति और पक्के साधन भक्ति लक्षण तत्व सार। जैसे एक ही आम कांटा वार्ता
से टॉ, खट्टा होता है आम, कच्चा आम, और परिपक्व अवस्था से सुस्वादु मिष्टी हुई है। कोई प्रकार प्रेम के बहुत से स्तर हैं। प्रेम क्रमशः परिपक्व होकर के स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, भाव परिणाम धारण करता है। प्रेम विकास के विभिन्न स्तर प्रेम की परिणति है। प्रेम ही क्रमशः शांत या स्वादिष्ट होगा, शांत मन घनीभूत होकर के पूर्वावस्था का त्याग नहीं करता, बल्कि स्नेह, मान, प्रणय हुआ। जैसे प्रेम परिपक्व होकर के स्नेह हुआ, किंतु प्रेम नष्ट हो गया ऐसा नहीं, प्रेम रहेगा। और सब में ऐसा नहीं देखा जाता। प्रेम का सर्वोच्च स्तर भाव है। महाभाव की केवल ब्रज गोपियों में ही स्थिति है। महाभाव ब्रज की गोपियों के अतिरिक्त कहीं नहीं है। यहाँ तक कि रुक्मिणी सत्यभामा में भी नहीं देखा जाता। जिस भक्ति में कृष्ण को सुख देने की कामना को छोड़कर कोई कामना नहीं है, वही उत्तमा भक्ति है। वो 3 प्रकार की होती है: साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। यहाँ एक और बात विचारणीय है, और एक जिनिस विचारणीय है। सांख्य मत के अनुसार, सांख्य मतानुसार उपादान कारण अपनी पूर्वावस्था को त्याग करके कार्य रूप में बदलता है। ऐसे नहीं समझ आएगा। उदाहरण के साथ समझो। जैसे दूध, उसमें क्या देते हैं? जाम, उसमें दे देते हैं दही या कुछ, तो अब दूध नहीं रह जाता, वो अब दही हो जाता है, दूध नहीं रहता। फिर दही को दूध नहीं बना सकते, दही में फिर दूध नहीं रहता। उसी प्रकार भाव भक्ति विद्या प्रेमा भक्ति के रूप में बदलती है, तो क्या अपनी पूर्वावस्था को प्रत्याग कर देती है। जैसे भाव भक्ति, यदि वो प्रेमा भक्ति हुई परिपक्व होकर के, तो क्या भाव भक्ति समाप्त हो जाएगी? नहीं, उस समय भाव भक्ति भी रहेगी और धर्म प्रेम भी होगा। यही वैशिष्ट्य है। परंतु जब स्नेह के रूप में परिणित होती है, क्या रति की पूर्वावस्था समाप्त हो जाती है? नहीं। उसी प्रकार के इस उत्तरशिला रूप गोस्वामी ने दिया सिद्धांत। कहते हैं रति कृष्ण की लादनी शक्ति है। रति अथवा भाव क्या है? विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व क्या? रागात्मिक भक्तों के हृदय में जो श्री कृष्ण सेवा की परिपाटी है, वो जब भक्तों के अंदर में संक्रमित होती है, आती है, तब विशुद्ध सत्व उसको कहते हैं। परंतु कृष्ण की लाडली शक्ति विशेष है। वह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति से पूर्वावस्था का त्याग किए बिना, पूर्वावस्था भाव का भाव रहता ही है, और इधर प्रेम भी हो, उधर स्नेह मान प्रणय होता चला जाता है, पूर्वावस्था की श्रवण कीर्तन इत्यादि। हम तो जैसे साधन भक्ति में है, साधन भक्ति के समय में श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाप सेवन सब कुछ रहता है, और